Good morning, students, and once again, welcome you all in our A class of learning. So, today we are dealing with the same topic, that is coordination compounds, and I'll be showing you everything again through presentation. In the last lecture, we had seen postulates of Werner's theory. So, continuing with the same, I think because of some technical problem, in between there was a break in my presentation. So I'll continue from the same topic, that is postulates of Werner's theory. Okay. So I'm just in a brief, like I'll be letting you know the four postulates and we can jump to the main topic which we have to discuss today. So the first postulate you remember, the Werner says the metal in a complex possesses two valencies, one is primary, other is secondary. Now I'm not explaining you briefly because I've already explained you in the last lecture. Okay, primary valency is nothing but the oxidation state of that metal or the charge which is present on the metal, and secondary valency is nothing but the coordination number. The ionizable sphere consists of the entities which satisfy the primary valency. This is what you have to specify. And the next topic which you have to specify, next point, that next postulate, the secondary coordination sphere or the secondary valency or the coordination sphere which consists of the entities which satisfy the secondary valency. Okay, so I've already told you secondary valency is nothing but the coordination number, and that are fixed, they are not ionizable. Okay, so that's what we have already specified over below, and the number of secondary valencies is equal to the coordination number. It is nothing but the number of ligands, or if it is a polydentate, number of donor atoms. Okay, we can call it that way. And the last postulate which we were talking, like what he wanted to explain over here is the secondary valencies have the fixed arrangement of that ligands in the space, okay, around the metal. The two spheres of attraction in the complex कौन से होते हैं, यहाँ तक I have discussed with you all in the last lecture, and so I have taken it very fast. Now I just want to discuss about the which two spheres are present. Now if you see, this is the coordination sphere which we have. Just a minute. Hmm. Now this is what is your coordination sphere. जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. इसको सेकेंडरी स्फीयर भी बोलते हैं. सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जितने भी लिगेंड्स हैं, दे आर ऑल सेम लिगेंड, दैट इज अमोनिया मॉलिक्यूल. नाउ सिंस ऑल आर monodentate, that means they are donating one electron pair. So I have already explained you what is coordination number. Coordination number is nothing but the number of donor atoms attached on the ligand. We talk in that way. If it is a monodentate, it is equal to number of ligands. Okay, so the coordination number over here is 6. This is what you have to specify. And the next thing what you have to remember, ये जो Cl minus है, this belongs to the ionization sphere, and they say that the entities in the ionization sphere will going to tell you about they satisfy the primary valency. But what is primary valency? If a question arises, what is the primary valency of this coordination compound? यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि primary valency -3 है. That is wrong. You are wrong if you say that the primary valency is -3. Actually, the primary valency of this cobalt metal is what you have to calculate. So let's say ki like the primary valency of cobalt is X because we don't know. Now plus, there are six ammonia molecules which are attached. You know, ammonia molecules are neutral. They don't carry any charge. When they don't carry any charge, that means the charge on them is 0. So I'll write 0. So actually it is 6 times 0. If I write 6 times 0 or I write 0, that makes no sense. Okay, so you just write only 0, just cut out this because सभी का 0 है तो 6 मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, प्लस अभी यहाँ पर कितने Cl है, 3 Cl है. एक Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है. सो 3 Cl के ऊपर कितना चार्ज आएगा, दैट इज -1. तो 3 × -1. उस केस में मैंने स्किप किया है बिकॉज
एंड दिस होल इज इक्वल टू जीरो. ओके, बिकॉज ए बैलेंस हो जाता है. नाउ व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू this 3 goes on this side and I get plus 3. So primary valency of this particular compound, that is cobalt metal, I mean to say the oxidation state of cobalt metal is plus 3, which you have to remember. Okay, so this is what you have to remember. As far as आपको कोई भी compound दिया होगा तो आप उसकी primary valency या वो particular metals का oxidation state या primary valency calculate कर सकते हो accordingly. Is it very clear? Primary valency is not the charge which is present over here. जब मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज नॉट कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी इज द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द मेटल and or otherwise the oxidation state of that metal. This is what you have to remember. Is it very clear? Okay, now let's jump to what Werner exactly wanted to explain over here. Now what he has done when a complex is brought in the solution, like he has taken the complex and he has dissolved in water. Okay, now when he has dissolved this in water, तो आयनाइजेशन कैसे होगा? देखो मैंने नीचे दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है वर्नर का, और इस कोऑर्डिनेशन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयन पानी में डाला है तो इसका आयोनाइजेशन देखो इस तरह से हुआ है. यू गॉट अ कॉम्प्लेक्स आयन प्लस 3Cl. क्यों 3Cl आयनाइज हुए हैं? बिकॉज ये जो 3Cl है ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है. जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो इनका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, बट जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है. सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. जस्ट मेक अ करेक्शन ओवर हियर, लाइक आई जस्ट वांट कि हियर सिंस 3Cl आर गोइंग आउट, यहाँ पर 3 प्लस होना चाहिए. मैंने सिर्फ प्लस लिखा है. सो जस्ट मेक द करेक्शन कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके ऊपर 3 प्लस होना चाहिए, सिंगल प्लस नहीं होना चाहिए. से इट नाइसली. Okay, here I just want 3 plus. Okay, now since ये इसका जब आयोनाइजेशन हुआ है तो आपको 3Cl minus मिले हैं. Now 1 mole of this compound is ionized or dissociated and you get 4 ions. One is complex ion and 3 chloride ion. तो जब आप इसमें AgNO3 डालोगे, now this is what Werner has done. Okay, when you put AgNO3 in this particular solution, this 3Cl react with AgNO3 and you have the formation of AgCl. So this is in brief, like I have shown you the reaction. Exactly coordination complex के साथ वो reaction बतानी है, but मैं आपको यहाँ पर ये Cl और यहाँ पर ये जो Cl लिबरेट हुए हैं इनका रिएक्शन बता रही हूँ. सो दिस रिएक्ट्स विथ AgNO3 एंड सिंस एक पर्टिकुलर 1 मोल अगर मैंने ये लिया है तो मुझे AgCl के 3 मोल्स मिल रहे हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज 3Cl जो आयंस है वो बाहर प्रेजेंट है, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है. प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट. नाउ नेक्स्ट व्हाट वर्नर हैज डन, like when he has done all these things he got a test for Cl minus, but उनको यहाँ पर CO3 प्लस और अमोनिया का टेस्ट नहीं मिला है. उन्होंने स्पेसिफिकली ये टेस्ट किया है, बट ही डिडंट गॉट द टेस्ट फॉर कोबाल्ट 3 प्लस आयन एंड अमोनिया, बिकॉज ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है और इनका आयोनाइजेशन नहीं होता है. प्लीज सी कि जब मैं ये कंपाउंड का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन किया है तो यहाँ पर ये अमोनिया और ये कोबाल्ट आयन का आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये टेस्ट नेगेटिव है. ही डिडंट गॉट एनी like positive test for both of these, that is cobalt ion, that is 3 plus, and ammonia. Okay, now next what he has done, he has again taken 1 mole of a purple colored complex of COCl3 and ammonia. अब जब it is treated with excess of AgNO3, what he got 2 moles of AgCl. Now why he got 2 moles of AgCl, you have to specify. Write the formula of the complex and the coordination number is 6. That is what he is telling. Now when coordination number is 6, see the answer over here. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दैट मींस यहाँ पर 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है. तो उन्होंने क्या कहा है कि 2 मोल्स ही AgCl के मिले हैं, मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में 2 ही Cl एटम्स है, वो ज्यादा नहीं है, और एक Cl
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है. ओके, नाउ इफ आई आयोनाइज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ओवर हियर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जस्ट आई एम इरेजिंग एंड शोइंग यू. अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? नाउ दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर +2 का चार्ज हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स Cl माइनस मुझे मिल जाएंगे. आई एम नॉट स्पेसिफाइड ओवर हियर, आई जस्ट वांट यू टू डू दिस. सो दो Cl और ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये यहाँ से रब हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट. यहाँ पे 2 प्लस का साइन आ जाएगा. नाउ सिंस यहाँ पर आपको दो Cl मिलते हैं, 1 mole ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स एंड गिव्स यू 2 Cl माइनस. सो नेचुरली ये जो आपके Cl है ये AgNO3 के साथ रिएक्ट होंगे और आपको 2 moles ऑफ AgCl मिलेगा. दिस इज व्हाट वर्नर वांट्स टू स्पेसिफाई ओवर हियर. तो आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर. +2 moles आर फॉर्म. 2 moles क्यों मिले हैं? बिकॉज काउंटर आयन में 2Cl माइनस है. ओके, और जो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है उनका आयोनाइजेशन नहीं होता है. क्लियर? Now let's take one more example over here, like what exactly the other thing he has done. He has again taken 1 mole of a green colored complex of COCl through 3, sorry, COCl3 and ammonia, और इसको excess of AgNO3 के साथ उन्होंने फिर से रिएक्ट किया है. Now इस टाइम उनको एक ही मोल मिला है AgCl का, और वो ये भी कहते हैं कि like the coordination number of cobalt is 6. When the coordination number of cobalt is 6, that means 6 ligands are present. That is what you have to remember. और एक ही मोल मिला है मतलब एक ही Cl माइनस बाहर होना चाहिए. ओके, बाकी के 2 Cl कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर होने चाहिए. तो see what I have written. He said कि only 1 mole of AgCl is obtained. Now see the formula which I had shown you on the screen. इसका मतलब काउंटर आयन या काउंटर पार्ट में या आयनाइजेशन स्फीयर में एक ही Cl है जो कि like dissociate होता है. when this is dissolved in water you get this particular complex ion, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये रब हो जाएगा यहाँ से and you get plus Cl minus. So this is how the reaction is there when I dissolve it in water. Okay, तो अब आपको एक ही Cl मिला है तो ये एक Cl इस AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी, and you have the formation of AgCl what I want to specify over here. Okay, so अभी आपको याद ये रखना है कि लाइक जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है उनका आयनाइजेशन नहीं होता है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर है आयनाइजेशन स्फीयर में है उनका आयोनाइजेशन होता है. इज इट वेरी क्लियर? व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, आई मीन टू से. No, I have a very simple chart over here. What exactly Werner has done? उन्होंने ये COCl3 और excess of ammonia लिया है, तो वहां पर आपको ये this is traditionally this was the thing what was there, but when in the modern formula actually was ऐसे कि जहां पर ये complex इस तरह से बताया गया है. तो अभी यहाँ पर आपको बताना है कि 3Cl माइनस है. टोटल आयंस 4 होते हैं बिकॉज आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है और 3 Cl होते हैं. ओके, एंड चार्ज के ऊपर सॉरी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो 3 प्लस होता है. सेकेंड केस में क्या हुआ है? टोटल आयंस 3 होते हैं एंड सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच आई हैव रिटन. कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन अगर होता है तो 2 Cl और एक ये कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर चार्ज +2 आएगा बिकॉज 2 Cl बाहर है. ओके, द टोटल आयंस आर 3 एंड फ्री Cl माइनस आर 2. Similarly, when he jumped towards the third, where you have only 2 ions, one for the complex, see this is the complex जिसके ऊपर +1 चार्ज है और ये Cl है, तो 2 ही ions फॉर्म होते हैं और Cl जो है वो एक ही है और आपको टोटल ions 2 मिलते हैं. Now next is लास्ट में उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर लाइक क्लोराइड का टेस्ट ही नहीं आया. ही डिडंट गॉट एनीथिंग, आई मीन टू से AgNO3 के साथ जब उन्होंने रिएक्शन किया है तो उनको कुछ भी नहीं मिला है. AgCl नहीं मिला, आई मीन टू से AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिला है. तो दैट मीन्स द फॉर्मूला का स्ट्रक्चर इस तरह से है. तीनों भी जो Cl है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, आई मीन टू से लाइक दिस, और वो बाहर नहीं है. अगर वो बाहर काउंटर
पार्ट भी होते तभी उनका आयोनाइजेशन होता. सिंस दे आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उनका आयोनाइजेशन नहीं होता है. तो जब आयोनाइजेशन नहीं होता है तो दैट मीन्स वो AgNO3 का टेस्ट पॉजिटिव नहीं बताते हैं. दिस इज हाउ वर्नर हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट द coordination compounds. Is it very clear? Now the next topic which we have to study today is very simple. Now this coordination complex are classified, uh, like they are classified अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लिगेंड्स. दो टाइप्स है, एक टाइप ऑफ लिगेंड्स और एक साइन ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. दो तरह से आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को आप क्लासिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंगली. तो अब पहला टाइप हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लिगेंड्स. अभी ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी है. नाउ इफ एट ऑल इन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है तो इट इज वेरी इजी. नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, फॉरगेट व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, सी दिस एग्जांपल वेयर आई एम पुटिंग द हाइलाइटर. अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को देखते हो या कॉम्प्लेक्स आयन को देखते हो तो यहाँ पर जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट हैं वो सेम टाइप के हैं. अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स आयन में सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. नो व्हेन आई से होमोलेप्टिक, होमो मीन्स सेम. Okay, so please remember, only one type of ligand agar surround, you just have to say कि if one type of ligands are surrounding the metal ion, यहाँ पर cobalt दिया है, example दिया है, तो आप बोल सकते हो कि if one type of ligands are surrounding the cobalt ion, the complex in which the metal atom is bonded, better I can talk in this way, the complex in which the metal atom is bonded to only one type of ligand, I called it as a homoleptic complex. Okay, now so you have to just remember the example, then आप लिख सकते हो कि if only if the metal atom is surrounded or by only one type of ligand, it is called as homoleptic complex. नेक्स्ट लेते हैं. अभी यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल देख लो. अभी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर दो टाइप के लिगेंड्स है. सी यार, अमोनिया इज वन टाइप ऑफ लिगेंड, क्लोराइड आयन इज अदर टाइप ऑफ लिगेंड. सो आपको दो टाइप के लिगेंड्स दिखते हैं. फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये हेट्रो मीन्स डिफरेंट है. हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट. नाउ if at all the complexes in which the metal ion is surrounded by more than one type of ligand, you will say that type of complexes are called as heteroleptic complexes. आपको सिर्फ ये कोबाल्ट वाला एक एग्जाम्पल भी बताया तो भी चलेगा. आई जस्ट वॉन्ट यू कि वॉट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज. अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्सेज इन विच द सेंट्रल मेटल इज सराउंडेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड एज हेट्रोलेप्टिक. और उसके साथ में आपको ये एग्जाम्पल देना है. अब जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल दो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो. देयर इज, इट्स योर चॉइस विच एग्जाम्पल यू हैव टू write. Okay, so again I'm telling you, if different ligands are present, more than one type means इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 types के भी हो सकते हैं, 4 types के भी हो सकते हैं, depends like which example you are taking. Okay, so these are the 2 types of complexes, one is homoleptic and other is heteroleptic. So if a 2 marks question is there, like so you have to talk about both homoleptic and heteroleptic. Now the next topic what is there कि we have to classify on the basis of sign of charge. Okay, साइन ऑफ चार्ज मीन्स कॉम्प्लेक्स. अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हो तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और नो चार्ज, these ligands are classified into different, this coordination complex are classified into different types. Okay, now let's solve this example.
like I am just talking about homoleptic and heteroleptic. Classify the complexes. आपको coordination complexes दिए हैं, आपको सिर्फ बताना है ये homoleptic है या heteroleptic है. अभी first example देखते हैं. यहाँ पर देखो ये 5 ammonia ligands है और एक chloride है. That means two types of ligands are present in this complex. When two types of ligands are present in this complex, हम बोल सकते हैं ये heteroleptic है. Is it clear? नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देख लो. यहां पर एक ONO, ये एक लिगेंड है वेर द अटैचमेंट इज थ्रू ऑक्सीजन एटम, एंड ये दूसरा है दैट इज अमोनिया. यहां पर भी दो टाइप के लिगेंड्स है. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज अगेन अ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. इज इट क्लियर? नाउ कमिंग जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. यहां पर भी अगर आप देखोगे ये स्क्वायर, सी व्हेन आई से लिगेंड्स दैट मींस समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट inside the square bracket. Please remember, I'm not worried what is present outside the square bracket in this case. Okay, यहाँ पर भी अगर आप ये square bracket देखते हो तो ये square bracket के अंदर अमोनिया एक ligand है, क्लोराइड एक ligand है which is attached to this cobalt metal, and ethylene diamine के दो ligands. मतलब यहाँ पर तीन ligands present है. So again this complex is nothing but a heteroleptic complex. अब आप बोलोगे कि होमोलेप्टिक का तो एग्जाम्पल ही नहीं है, तो सी दिस इज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलेप्टिक वेयर दिस कोबाल्ट मेटल इज सराउंडेड बाय थ्री लिगेंड्स व्हिच आर सेम, दैट इज ऑक्सलेट आयंस. ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है ये होमोलेप्टिक का है. 1 मार्क के लिए वेरी शॉर्ट आंसर्स में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड्स. ओके, सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि if same ligands are present, it is homoleptic complex. If different ligands are present, it is heteroleptic complex. Okay. Now next classification मैंने आपको क्या कहा है, depending upon the charge on the complex. Okay, a positively charged coordination sphere or a coordination compound having a positively charged coordination sphere. एक coordination compound है जिसमें coordination sphere के ऊपर अगर positive charge आता है तो हम उसके को cationic स्पीयर बोलते हैं या कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ओके, तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि अभी अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हो सीधे, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आपको 2+ का साइन दिख रहा है, दैट मीन्स ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है. ओके, सिमिलरली अभी यहाँ पर तो आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, सो यू आर नॉट वरीड अबाउट द काउंटर पार्ट. बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब आप बोलोगे कि ये मैम इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है. नाउ इन दिस केस यू हैव टू आयोनाइज इट. मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो प्रेजेंट है उनका आयोनाइजेशन नहीं होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसका आयोनाइजेशन होता है. तो अगर इसका आयोनाइजेशन होता है तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आयोनाइज हो जाएगा. दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, दिस इज आयनाइज्ड और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2, सॉरी +2. ओके, और ये जो SO4 है दिस इट इज दिस कॉम्प्लेक्स प्लस SO4 ऐसे आपको मिलता है. आई एम जस्ट राइटिंग हियर, आई विल रब इट अगेन. सो आई राइट इट, दिस इज आयनाइज्ड SO4 -2. तो दैट मीन्स आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 का चार्ज आया है. तो जब +2 का चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ रहा है तो हम इसको कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं. इज इट क्लियर? लेट नाउ सिमिलरली दे हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड ओवर हियर दिस इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. तो अभी यहाँ पर जो SO4 प्रेजेंट है ये SO4 सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए है, to make it electrically neutral. Okay, so otherwise ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. सिमिलरली एक और टाइप है दैट इज एनायनिक स्फीयर. नाउ इन दिस केस अगर मैंने जैसे अभी यहाँ पे कहा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. A negatively charged coordination sphere or a coordination compound having negatively charged coordination sphere
is called as anionic complex. Is it clear? अभी यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल, जहां पर ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 माइनस है, दैट मींस ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आप इसका आयनाइजेशन बताओ। इसका आयनाइजेशन कैसे होगा? 3 टाइम के प्लस प्लस FeCN 6 3 माइनस, ये देखो यहाँ पे दिया है। ओके, दैट this is just k plus ions are written in the counterpart, और ये just to make it electrically neutral or to balance this compound it is written. Okay, so this complex carries a negative charge, so it is an anionic complex. now एक last type है यहाँ पर, न्यूट्रल स्पीयर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, पहले वाले में मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज मींस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकेंड वाले में नेगेटिव चार्ज तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, थर्ड वाले में कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो हम उसको एनायनिक सॉरी हम उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट possess cationic or the anionic sphere, but it does not, it is not having any charge, but it has a it carries no charge. Okay, so it is called as a neutral complex. एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड we'll stop over here. Classify the complexes as cationic, anionic और neutral. ओके अभी फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 4 है, सो 4 आर प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट। अगर इसका आयोनाइजेशन हम करते हैं तो इट बिकम्स 4 टाइम्स Na, और इसके ऊपर -4 चार्ज आ जाए, सॉरी या इसके ऊपर -4 चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर 4 टाइम्स Na प्लस आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सिमिलरली अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पर ब्रैकेट डालना भूल गए हैं, सो विल जस्ट पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर लाइक दिस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये जब इसका आयनाइजेशन होगा तो यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा, +2 टाइम्स Cl माइनस, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना रह गया है, सो प्लीज गिव द स्क्वायर ब्रैकेट एंड 3 माइनस इज आउटसाइड। ओके, तो यहाँ सिंस इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज आ रहा है तो ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अभी थर्ड केस में भी यहाँ पे ब्रैकेट रह गया है, जस्ट पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हियर, और इस केस में भी यहाँ पर ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। प्लीज रिमेंबर दिस। और इन दिस केस ऑल्सो द स्क्वायर ब्रैकेट, दे हैव फॉरगॉटन टू पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट, जस्ट पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट, इधर कोई भी चार्ज नहीं है तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। So please go and study all this. I think please make a habit of watching the videos as many times as you want, and then let me know like you are able to understand or not. So today we'll be stopping it over here only, and we'll be continuing in the next lecture. Take care of yourself, stay safe, and if you have any problem, do contact me on my WhatsApp group. Okay, thank you.